आपका जब स्टूडेंट लाइफ थी तो आपके एरा में स्टडीज थी वो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रेस फ्री थी, लेकिन हम आज की बात करें तो आज बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस हो चुके हैं। इतनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई नहीं हुई जितनी सीट्स बढ़ी हैं। सर, आपने अभी बताया कि लोगों को सीपीआर परफॉर्म करना नहीं आता है। See, CPR is not something which you can hear and learn. It is to be done. It's a hands-on training. लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में मेजर डिफरेंस पता ही नहीं होता। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? So heart attack is basically जब heart की muscle damage होती है because of any blockage in the heart. So a heart attack can lead to cardiac arrest. सर, आपने एक सीरीज चला रखी है दिल धड़कने दो, तो आपका क्या थॉट था जब आपने इसको स्टार्ट करा? We used to put daily post regarding कि कैसे कैसे छोटे छोटे बदलाव करके जीवन शैली को ठीक करना है। न्यूट्रिशन भी आजकल बहुत ज्यादा कम हो चुका है, अगर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं मतलब, और कोविड के बाद कोविड। So COVID is a dustbin diagnosis. हमें जो भी चीज समझ में नहीं आती है उसको कोविड के सर पे डाल दो। Every year this is increasing. It is more to do with lifestyle, more to do with stress. Welcome everyone. Today we have a very special guest, Dr. Saket Goyal, a senior interventional cardiologist, DM and MD known for his work in heart health in Kota. Welcome, sir. Thank you. So we are glad to have you with us, and we are truly grateful as you have given your precious time to us. My pleasure. So how are you feeling being with us today? Perfectly. It's always good to be with children. We have been going to schools for a long time. Take across the message of healthy living. So it's so good to be here. That's our pleasure, sir, to have you with us. Sir, तो सबसे पहले स्पेशली हम आपके और आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। Sure. सर, तो आपको क्या मोटिवेट करा कि आपने मेडिकल प्रोफेशन को चूज करा? So I'm from Kota and schooling was done from Kota and my father is a doctor and I've been seeing him since I was very small. So the amount of work that he was doing, of course, he was very busy, but the amount of respect that he got in the society and the kind of work he was doing. कहीं भी जाते थे, for the doctor, once you're a doctor, it makes you feel a bit different and you are more recognized. Yeah, because you can help so many more people. So कभी कोई और थॉट आया नहीं, कोई और चीज कभी सोची भी नहीं कुछ बनना है, बस पढ़ते गए और फिर बन गए। तो Okay. Actually, there was no other thought. कभी मन में ऐसा कुछ आया नहीं कुछ और बनना है। Okay. And So that's उस टाइम ऑफ कोर्स इतना कंपटीशन नहीं था तो बनना आसान था शायद। So okay. That's so motivating, sir. Sir, आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो आप क्या बिल्कुल पढ़ाकू से थे या फिर फन लविंग वन भी थे? hardly. I am an overachiever in fact. तो मतलब तो इतनी पढ़ाई कभी नहीं की। I was always active in extracurricular activities, sports, cultural activities, in school also, in college also. So, but as I said कि उस टाइम शायद इतना ज़्यादा pressure नहीं था। Okay. So you just need to be a medical to succeed and luck always has to be on your side. But of course medical की पढ़ाई इतनी लंबी होती है that you need to succeed at various levels. तो पढ़ना तो पड़ता है, but of course I was not a very meticulous and regular student. कई बार मेडिकल में जब थे तो लास्ट मोमेंट स्टडीज भी करते थे, एग्जाम भी पोस्टपोन कराते थे, but we could do it. That's so interesting. Dr. Goyal is known for his 25 years of experience and remarkable dedication in heart health and community. He had been honored with Best Interventional Case Award and First Haruti Healthcare Achievers Award. He also actively contributes in society by leading fitness and healthcare programs. Sir, आपने वॉक रन प्रमोट करा है और वो इंडिया का बिगेस्ट हेल्थ फेस्टिवल था, उसका मोटो है। Yeah. So, sir, ये इंडिया का बिगेस्ट हेल्थ फेस्टिवल कैसे बना? Actually, we call it the biggest health festival because it's not only the day of the event कि आज 15,000 लोग या 20,000 लोग दौड़े हैं. Along with that program, we have a massive school program. Of course, we had come to you. We organize quiz programs. We organize drawing competitions. Yeah. Everything which is associated with that program is associated with the message of heart health. कि किस प्रकार से हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करके लाइफस्टाइल चेंज करके हार्ट की बीमारी से बचना। So we want to take this message across the society कि the time to change is right now at your age. The time to change is not at 40s and 50s. If we inculcate the habits of healthy living right in childhood, then we can save India from the coming epidemic of heart disease. It's not a coming epidemic. It's already an epidemic. So as a cardiologist, what I can see is that, of course, when the patient comes to me, it is always like he's already sick. So we want to reach out to people who are not sick, who are still in their healthy years of life, and to save them, because as an Indian, we all know that we all are at increased risk for heart. So we just need to tell them that they should believe that by making these small changes in lifestyle, they can
have a better health and maybe save themselves from coming heart attacks. Because what we see right now, day before yesterday at the angioplasty in a 24-year-old male. So there's no time for, and of course we know that one of the basic outcomes of heart disease is sudden cardiac death. Yeah. So in that case, you do not find any time for treatment or maybe prevention. So the time to change is now. And with this message, of course, we take the program Walk on It. And the question was why it is the biggest event? Because the associated health programs, like we have a Save a Heart program, which we teach CPR to children, CPR to various societies, then associated health education programs. That makes it because we can touch almost maybe few lakh lives every year. Yeah. That is why we call it the biggest health event. सर आपने अभी बताया कि लोगों को सीपीआर परफॉर्म करना नहीं आता है, तो मतलब हम क्या इनिशिएटिव परफॉर्म कर सकते हैं मतलब स्कूल्स या कॉलेजेस में कि बच्चों को सीपीआर के बारे में बहुत नॉलेज मिले और आगे जाके? See, CPR is not something which you can hear and learn. It is to be done. It's a hands-on training. So what we do is we take dummies to schools, we take dummies to various conferences, and we have these volunteers. We have a team of 10 to 12 volunteers. हम लोग जाते हैं जगह पे. We get those dummies along with us. So first we talk to them about the principles of CPR, and then we give them a hands-on training. डमी को रख के और जब तक अपने हाथ से नहीं करेंगे तो जब कभी ऐसी इमरजेंसी होगी तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि हम किसी को हाथ लगा पाए. तो आपको सीपीआर सीखना भी है और आपका जो मन में डर होता है कि सीपीआर करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो डर को मन से निकालना है. सो एक्चुअली व्हाट इज नीडेड इज दैट यू when in life whenever you get a chance to do a hands on training in CPR you should do it, क्योंकि कभी भी घर पे काम पे कभी भी किसी को भी एक लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. तो to save a life in one life is a big thing, so try to do. That's so informative sir for our audience. Sir, लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में मेजर डिफरेंस पता ही नहीं होता. मतलब लोग मीडिया में भी अगर हम देखें तो वो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को दोनों को सेम ही मतलब बता देते हैं. तो इसका क्या मेजर डिफरेंस होता है? Yeah, I face this question everything on my channel also, and so heart attack is basically जब हार्ट की मांसपेशी, हार्ट की मसल डैमेज होती है because of any blockage in the heart. So a heart attack can lead to cardiac arrest, and cardiac arrest can be outcome of any eventuality, like किसी को दम घुट गया, किसी को बीमार हो गया, बुखार आ गया, बीपी डाउन हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो every life will end with a cardiac arrest. So cardiac arrest is a state जबकि हार्ट बंद हो गया है, पेशेंट बेहोश हो गया है, in that condition you need CPR. And heart attack is when somebody is getting muscle damage because of blockage in the heart arteries, or that is a survivable thing. You can get treated by injections, you can get treated by angioplasty or various medicines, and you can survive. And of course, one of the major complications of heart attack is cardiac arrest. That's so informative. So, आपने अपने फेसबुक पे एक सीरीज चला रखी है, दिल धड़कने दो. So Insta and Facebook. Yeah. So it is on very much limelight. तो आपका क्या थॉट था जब आपने इसको स्टार्ट करा? See, yeah. So I started the Heartwise program on Facebook in I think 2013 or 14, and we used to put daily post regarding कि कैसे कैसे छोटे छोटे बदलाव करके जीवन शैली को ठीक करना है. And when we got a positive response, so it started on Facebook, then it came to the city, and we did various social programs. And as things change, I think all of you have moved to Insta now. So I felt that making small videos will be more communicative. So that is why now I started this series Dil Dhadakne Do. I think it's almost 68 episodes now. So when I started, I thought कि 20-25 टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा क्या टॉपिक होंगे, but topics keep cropping up, so videos बनते जाते हैं और डलते जाते हैं. So thank you all for liking it. Thank you sir. Sir, कभी किसी को हमारे सामने हार्ट अटैक आ गया तो हमें क्या इमीडिएट फर्स्ट एड देना चाहिए उस पर्सन को? So एक बेसिक चीज जो सबसे पहले हमें करना है, अगर डाउट भी है कि हार्ट अटैक के कोई टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते. हार्ट अटैक में ऐसा नहीं है कि जैसे कोई टिपिकल लेफ्ट में दर्द होकर हाथ में आएगा जो हम लोग जानते हैं. हार्ट अटैक में जबड़े में दर्द हो सकता है, छाती में घुटन हो सकती है, दोनों कंधे टाइट हो सकते हैं, दोनों हाथों में दर्द हो सकता है. तो ऐसा कोई भी लक्षण, इवन गैस बन सकती है. तो काफी एक प्रॉब्लमेटिक है. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द पेन ऑफ हार्ट अटैक फ्रॉम द पेन ऑफ एसिडिटी. तो अगर कोई बर्निंग हो रही है चेस्ट में, सो वन मेजर क्राइटेरिया इज दैट हार्ट अटैक इज नेवर लाइक दिस. यू कैन नॉट पुट अ फिंगर ऑन योर पेन. इट इज लाइक दिस. इट इज कंजेशन, चोकिंग, ब्रेथलेसनेस, स्वेटिंग. तो कभी भी अगर डाउट है कि हार्ट अटैक है, सबसे पहले उस पेशेंट को बैठा दीजिए और उसको एक डिस्प्रिन टैबलेट है 325 मिलीग्राम की, वो उसको आपको च्यू करने को देनी है या फिर पानी में डिसॉल्व करके देनी है इमीडिएटली. सो दैट इज टू बी गिवन एज सुन एज पॉसिबल विदाउट वरिंग कि उसका कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू एट होम. और वो 325 mg की टैबलेट उसको swallow नहीं करनी है, च्यू करनी है, ऊपर से पानी पीना है. एंड देन यू टेक दैट पेशेंट फॉर अर्जेंट ECG.
so that more definitive treatment can be done. Other treatments, doing any kind of maybe local therapies or various kind of home therapies will only you will waste time. So give her Disprin and rush for ECG. That is the best way. सर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव स्टार्ट करा था कि उन्होंने 5 मेडिसिन इंट्रोड्यूस करी थी, लाइफ सेविंग 5 मेडिसिन. तो क्या उनका इनको क्या इंपॉर्टेंस होता है, मतलब हमारे जब हम किसी को हार्ट अटैक आया तो? See, I'm not sure of any government initiative. It was more of private initiatives. Like we also distributed heart kits, which had 3 medicines. तो उसमें जो main component है that is Disprin. बाकी 2 optional हैं. उसमें एक statin होता है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन होती है, which can be given later also. एक उसमें sublingual tablet होती है Isodil, which you can only give if you are sure कि patient का BP ठीक है. क्योंकि कभी-कभी क्या होता है हार्ट अटैक में पेशेंट का बीपी कम होता है और आपने उसको सबलिंगुअल आइसोडिल दे दी, उसका बीपी और कम हो जाएगा. सो माय रिकमेंडेशन इज कि ओनली गिव डिस्प्रिन एंड रश फॉर ECG. हमारे किट्स में भी 3 टैबलेट्स थी, बट आई अगेन एम्फसाइज कि ओनली गिव डिस्प्रिन. ओके सर. सर अगर हम जानते हैं कि अभी की जनरेशन जो है वो आजकल बहुत फिटनेस और सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा उनका हो चुका है मोटिव. तो कभी भी किसी को भी मतलब इमीडिएट जो है हार्ट अटैक आ जाता है, तो इसमें क्या हमारी लाइफस्टाइल में कोई परेशानी है या फिर हमारे फूड्स और इसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं कोविड के बाद की ऐसा हो रहा है? होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी कोलैप्स हो जाता है, किसी स्कूल में उसको हार्ट अटैक का लेवल दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू डाई फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट. सो इट इज नॉट हार्ट अटैक. कई बार इसमें कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज होती हैं, किसी बच्चे को वैल्व की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को रिदम की प्रॉब्लम हो सकती है. तो देयर आर वेरियस इश्यूज. अनलेस इट इज ऑटोप्सी प्रूवन, यू कैन नॉट लेबल द इवेंट एज हार्ट अटैक, जो कि हमारे आमतौर पर होता है. सेकेंडली, इट इज वेरी वेरी राइट कि आज के बच्चे मोटिवेटेड हैं, लेकिन दैट मोटिवेशन इज इट कमिंग टू द लाइफस्टाइल, do they get time to apply that motivation? That is not true. We all know कि वो देखना और उसको apply करना are 2 different things. We all know कि fast food नहीं खाना है. We all know we talk about so many things, sugar, wheat, fast food, but of course you know that, but you don't apply that. And we all know कि exercise बहुत important है, running बहुत important है, walking important है, but how many of you can do that? या तो motivation नहीं है या फिर time नहीं है. And time I always say कि if you have time for Facebook, if you have time for Insta, you have time for exercise. So time निकालना पड़ेगा. You all know the rules. But the need to apply that is very important. I missed some part of the question. There was one more point which I wanted to emphasize. वो मैंने miss कर दिया. What was that? सर इट वाज लाइक न्यूट्रिशन भी आजकल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, मतलब अगर पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मतलब, और कोविड के Yeah, बाद COVID. So COVID is a dustbin diagnosis. हमें जो भी चीज समझ में नहीं आती है उसको कोविड के सर पे डाल देते हैं. So COVID खत्म हो गया है और केवल मन में रह गया है. कोविड को बुला दीजिए. एंड ऐसा कहीं भी दुनिया में कहीं भी कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है कि कोविड से या कोविड की वैक्सीन से आज के जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो हो रहे हैं. I became a cardiologist in 2003, and 2003 से आज 22 साल हो गए हैं. Every year this is increasing. It is more to do with lifestyle, more to do with stress. It has nothing to do with or the vaccine. It is lifestyle, that is diet and exercise and stress. सर जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा हमें फूड आइटम जो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, मतलब हमें बिल्कुल डाइट में लेना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसा कौन सा फूड आइटम है वो? एक आइटम में तो लिखा ही होता नहीं लेना है, टोबैको. सो दैट इज बियॉन्ड डिस्कशन. टोबैको स्मोकिंग वी शुड नॉट डिस्कस बिकॉज पैकेट पे लिखा हुआ है कि मैं हानिकारक हूं, तो वी शुड नॉट टेक. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आस्क मी वन आइटम, इट इज शुगर. Sugar is the biggest culprit. It is an addiction, and I always post it is like cocaine. It goes and hits the pleasure centers in the brain, and it causes an addiction. It is the biggest cause of disease in the world. So you should try to avoid all sugar foods. और उसमें भी सबसे बड़ा जो sugar का एक culprit drink है, that is soft drinks. We all take soft drinks. It's very heavily loaded with sugar. It is zero nutrition and all calories. So that is one basic rule that every child should follow. Try to strive for a zero sugar diet. Yeah. Of course, there are so many other rules, but try to strive for a zero sugar. So that was really, motivating for our students also, and they gain a lot of knowledge about it. So I hope the school canteen changes something. So, okay, sir, olive oil और जो देसी घी है हमको इक्वली हम मतलब अच्छा माना जाता है, मतलब कि अगर हम उसको मॉडरेट अमाउंट में ले तो वो बहुत अच्छा है हमारे लिए. लेकिन जो ऑलिव ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है और जो घी होता है वो सैचुरेटेड होता है. तो अगर हम घी भी ज़्यादा कंजप्शन करेंगे तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है. तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? So ऑयल और घी में काफी कंफ्यूजन होता है. मुफा पुफा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, बॉइलिंग पॉइंट, रेंसिडिटी, कई सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं. सो बेसिक जो रूल्स हैं, जो भी ऑयल घी की क्वांटिटी हो मिनिमम रखें. ह्यूमंस के अलावा कोई भी और एनिमल रेस ऑयल घी का उपयोग नहीं करती है. अगर आप लौकी भी खाते हैं उसमें भी घी होता है, अगर आप गेहूं भी खाते हैं उसमें भी नेचुरल ऑयल होते हैं. तो बॉडी डज नॉट नीड एडिशनल ऑयल एंड घी.
The limit should be not more than 3 teaspoons per person per day. 3 teaspoon मतलब छोटा चम्मच. And तो amount कम होना चाहिए. The second thing is keep changing your oil. Because there are so many things ना, मैंने कहा मुफा पुफा ओमेगा 3. So कभी आप olive लें, कभी आप सरसों का तेल is very good, कभी आप rice bran लें. So keep changing your oil and don't cook the oil. Okay. बिकॉज जब भी हम ऑयल को हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं उसमें कुछ ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं और ट्रांस फैटी एसिड्स हमारे हार्ट के लिए टॉक्सिक होते हैं ज्यादा एक नॉर्मल अनकुक्ड ऑयल थे. तो हमारे हमेशा इंडियन पद्धति थी कि कच्चा तेल काम में लेना है, कच्चा घी काम में लेना है. दैट इज गुड ना. हम तो कचौड़ी के शहर से हैं तो वी ऑल नो कि इट कीप्स बॉइलिंग और ऑयल को सुबह से शाम तक पकाते रहते हैं तो इट इज लाइक अ काढ़ा ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स. ऑलवेज ट्राई टू हैव फ्रेश ऑयल्स एंड डोंट जो हमारे इंडियन कुकिंग है तड़का लगाना है, चौक लगाना है. तो इंडियन अपनी मदर्स से फादर से यू शुड डिस्कस एंड ट्राई टू चेंज द कुकिंग हैबिट्स. दैट इज गुड फॉर देम आल्सो. सर आपने अभी बात करी कचौरी की, तो कचौरी हमें कितनी ऑफन खानी चाहिए, मतलब लिटिल बिट नो वी कैन हैव इट. सी आई कैन अवॉइड सो मेनी थिंग्स लेकिन कचौरी सामने आती है तो है उसको ईट कचौरी. सो बट फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस. अगर आज खाली ऑफ कोर्स इन माय एज आई शुड नॉट बी ईटिंग मे बी मोर देन 2 a month एंड ऑफ कोर्स इन योर एज मे बी 4 a month. लेकिन जो सुबह शाम मतलब हम तो बोलते हैं कि कोटा में जो लोग आइडोन सर्कल के आसपास रहते हैं इट इज लाइक अ मेडिसिन डोजेज 2 DDS. 2 कचौरी दिन में 3 बार भी लोग खा लेते हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए एंड यू शुड नो प्लस द कैलोरी इक्विवेलेंस. इट इज ट्रांस फैटी एसिड्स प्लस यू शुड नो द अमाउंट ऑफ कैलोरीज. अगर आपने सुबह 1 घंटे एक्सरसाइज करी है और एक लोग सुबह सीपी गार्डन घूम के सीधे जाके फिर जलेबी कचौरी खाते हैं तो यू आर बर्निंग 300 कैलोरीज, यू आर टेकिंग 800 कैलोरीज विद यू. सो नेट बैलेंस तो खराब ही होगा. यू शुड नो द कैलोरी इक्विवेलेंस दैट यू व्हाटएवर फूड यू टेक. एक साइलेंट सी कैलोरी टैगिंग हमेशा मन में होनी चाहिए कि हम कुछ बाजार में खरीदने जाते हैं ना, आपने सपोज ये ग्लास खरीदने गए, पेन खरीदने गए, ऑलवेज सी कितने का है. वी डोंट बाय ना, कुछ भी ऐसे नहीं खरीद लेते हैं. शर्ट खरीद ली, पैंट खरीद ली, यू ऑलवेज सी द कॉस्ट. ऐसे ही जो भी फूड आप खा रहे हैं उसके पीछे एक कैलोरी कॉस्ट है. तो यू शुड नो वेदर यू कैन अफोर्ड दैट कैलोरी विद योर गिवन लाइफस्टाइल. कि आपने इतनी एक्सरसाइज करी है कि आज आप कचौरी खा सकते हैं. देयर शुड बी काइंड ऑफ साइलेंट टैगिंग. ओके सर. सर अभी इंडिया में ऐसे सोशल मीडिया बहुत बूम हो चुका है, तो पीपल जो है जो फ्रूट्स होते हैं जैसे अवोकाडो हो गया, ब्लूबेरीज हो गई. अवोकाडो जो होता है हेल्दी फैट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है और जो ब्लूबेरीज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में होती है. तो उसके अल्टरनेटिव में हमारे इंडिया में कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हैं जो हम खा सकते हैं? Yeah, so it's one of my favorite topics because we have to see the cost nutrition value of any fruit. आपके लोकल, पहली बात तो नेचर ने जो आपके लिए बनाया है दैट इज लोकल फूड. तो जो भी लोकल उग रहा है वो नेचर ने आपके लिए बनाया है, उसको जरूर खाइए. एंड यू हैव टू सी द कॉस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू. So if you see the cost nutrition value of avocado, it will be around maybe 100 in the list. So I've recently posted about guava. So there are things like guava, banana. If you see the nutrition value, avocado is actually people eat avocado as protein, and as you said, avocado is only fat. It is a replacement of fat. It's a replacement of cheese and butter. तो avocado का जो nutrition है, जिस cost पे आपको जो protein मिल रहा है, वो बहुत कम मिल रहा है. And as I posted, the highest amount of protein is in guava. A guava will have 3 gram proteins per guava, and an apple will have 0.3 grams. So if you say an apple a day keeps the doctor away, it's just a saying which has been put on us by Europeans. So it is maybe a guava or a banana a day will keep the doctor away. That will be more pleasant and more less costly. So you just search the cost nutrition value. In that sense, fruits like guava, banana, apple also, and maybe pineapple and papaya would be much better in the Indian scenario rather than going for avocado and blueberries. Okay sir, that's so informative for us also. Sir, बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की. तो ब्लड क्लॉटिंग को भी माना जाता है कि उससे भी हार्ट अटैक बहुत बढ़ चुका है आजकल के टाइम पे. मतलब ब्लड क्लॉटिंग से भी मतलब बहुत लोगों की हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है. तो इज इट राइट? Yeah, it is right. So heart attacks can basically be divided into 2 categories. One is cholesterol blockages जो होते हैं older ages में, और ज्यादातर जो young लोगों में हार्ट अटैक होते हैं that is because of sudden clot formation. So sudden clot formation के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक मेजर कारण जो इंडियंस में है that is increased homocysteine plus vitamin B12 deficiency. Both of these are related. So कई बार हमारे यहाँ यंग पेशेंट आता है हार्ट अटैक का, हम जब उसकी एंजियोग्राफी करते हैं एक आर्टरी ब्लॉक मिलती है. इट इज अ सॉफ्ट क्लॉट. इट इज नॉट लाइक अ क्रोनिक कैल्सिफाइड एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं मिलता है, उसमें सॉफ्ट क्लॉट मिलता है. और ज्यादातर उन लोगों में हमें विटामिन B12 कम मिलता है, होमोसिस्टीन ज्यादा मिलता है. और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज डिहाइड्रेशन. इंडियंस में समर्स में डिहाइड्रेशन होता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंटली विंटर्स में भी टेंड टू फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर. सो इवन विंटर्स में भी हम डिहाइड्रेट होते हैं, एंड डिहाइड्रेशन से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, उससे भी क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो
always try to maintain your hydration, check your vitamin B12, take vitamin B12 supplements. It is very important for all young Indians. ओके, थैंक यू सर। सर आपने अभी बात की विटामिन बी 12 की, तो जो विटामिन बी 12 होता है उसका नेचुरल सोर्स क्या है? नेचुरल वेज सोर्स बड़ा रेयर होता है। विटामिन B12 का अच्छी क्वांटिटी में जो होता है वो नॉनवेज में होता है, बट एज इंडियंस हमारे ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, सो वन इज मिल्क प्रोडक्ट्स। हम जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं उनमें मिनिमल विटामिन B12 होता है। और एक आजकल रूट चलती है, मोरिंगा रूट होती है, जिसमें विटामिन B12 ठीक मात्रा में होता है। अदरवाइज एज अ वेजिटेरियन टू प्लस फोर्टिफाइड फूड्स, आजकल जो दूध आता है या इवन व्हीट आता है वो फोर्टिफाइड होता है, तो उससे विटामिन B12 मिलता है। बट आई थिंक एवरी इंडियन, young Indian should, it is controversial, but I think they should take 2 tablets of vitamin B12 every week. ओके, थैंक यू सर। सर आप जैसे बात करते हैं कि इंडिया और जापान है, दोनों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ही डिफरेंस है उनके बीच में, तो आपका क्या मतलब क्या व्यू है कि ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ले तो खाना तो वो भी खा रहे हैं, खाना तो हम भी खा रहे हैं, तो व्हाट इज डिफरेंस? So we have to define what is normal. मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनसे पूछता हूँ मैं क्या खाते हैं, कहते हैं नॉर्मल खाता हूँ। पर नॉर्मल की परिभाषा सबकी अलग होती है, किसी के लिए 8 रोटी नॉर्मल है, 4 कचौड़ी नॉर्मल है, किसी के लिए वो नॉर्मल नहीं है। सो हमारा और जापानीज का नॉर्मल बहुत डिफरेंट है। एंड हैव यू हर्ड अबाउट ब्लू जोन्स? देयर आर ब्लू जोन्स वर्ल्ड में, देयर आर ब्लू जोन्स। तो जापान में कुछ एरिया ब्लू जोन्स हैं, मेडिटेरियन में कुछ एरिया ब्लू जोन्स है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है नॉर्वे, उनमें कुछ ब्लू जोन्स है। तो ब्लू जोन्स आर एरियाज वेयर पीपल आर लिविंग अप टू 100, नॉट एवरीबडी, लेकिन एवरेज एज इज मोर देन 90 एंड दे आर लिविंग अप टू 100। सो बेसिकली उन्होंने जब उस पर रिसर्च किया कि क्या क्या चीजें हैं जो कि लॉन्गेविटी बढ़ाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, 3-4 फैक्टर्स हैं। पहले तो डाइट है। दे ऑल ट्राई टू हैव अ प्लांट बेस्ड डाइट which is more Mediterranean kind, like more nuts, more plants. They do lots of physical activity. Either they are living on mountains or they are doing gardening was a very important fact. Maybe they are walking more. And third was social support. Friendship and social support was the third equally relevant factor, जिसकी वजह से उन एरियाज में हार्ट की बीमारी कम है. So diet, exercise and being happy and having social support, that these are 3 important factors जो कि longevity बढ़ाते हैं. और इंडिया में इन तीनों ही चीज की मेरे ख्याल से अभी काफी कमी होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जब स्टूडेंट लाइफ थी तो आपके एरा में जो स्टडीज थी वो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रेस फ्री थी, लेकिन हम आज की बात करें तो आज बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस हो चुके हैं। मतलब दे आर लिटरली नीट एंड जेई एंड दे ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम क्या मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट ला सकें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे कंपैरेटिवली स्ट्रेस फ्री रहें और हेल्दी रहें आगे जाकर? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं मिला, सरकार को भी नहीं मिला है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आउटलाइन की क्या चेंजेस करने चाहिए समाज में. इट हैज टू कम थ्रू पेरेंट्स आल्सो, टू सोसाइटी आल्सो. वी आर जस्ट ब्रिंगिंग डाउन द एज ऑफ कंपटीशन. तो जो पहले स्ट्रेस कंपटीशन में कैरियर में था वो हम बच्चों तक लेके आ गए हैं. सीट्स उतनी ही है, सीट्स का रेशियो कम नहीं हुआ है. बच्चे ऑफकोर्स पढ़े उसी रेशियो में सीट्स बहुत बड़ी हैं. हम जब हमारा सिलेक्शन हुआ था 1988 में, आई थिंक देयर वर अराउंड 400 सीट्स इन मेडिकल इन राजस्थान, और आज कितनी है? Maybe 4,000, 8,000, I think more than that seats. Yeah. तो इतनी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई नहीं हुई जितनी सीट्स बढ़ी हैं. तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर, लेकिन वी जस्ट नीड चिल्ड्रन टू सक्सीड एट एन अर्लियर एज. कंपटीशन के लेवल भी कोचिंग पहले 12th से शुरू हुई, फिर 10th तक आई, अब 7th से भी कोचिंग है. सो दीज थिंग्स मैटर, एंड पेरेंट्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स नीड टू चेंज देमसेल्फ बिफोर द चिल्ड्रन चेंज, क्योंकि चिल्ड्रन तो बच्चों को पेरेंट्स को देख के ही जो हैबिट्स को इनकलकेट करते हैं. तो आई थिंक पेरेंट्स आर गिविंग टू मच स्ट्रेस टू चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स, एंड इट्स लाइक अ पीयर प्रेशर. उसके बच्चे का हो गया, उसके बच्चे का हो गया, उसका बच्चा गया, बट वी ऑल नो देयर सो मेनी मीम्स ऑन दैट. सो द चेंज हैज टू कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम द पेरेंट्स आल्सो. एंड जो गवर्नमेंट एज लेजिस्लेशन करती है कि यहाँ पे कभी कोचिंग क्लासेस का 7th 8th में बंद कर दिए, दे आल्सो हेल्प. बट आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. आई थिंक इट इज अ cooperative effort of the government legislation, but the societies and parents' mindset regarding this needs to change. I think the children are just poor scapegoats in the pressure that the parents have faced in their life. That's so wonderful, sir. Sir, अगर हम बात करें आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं वो मतलब हेल्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं. मतलब they used to see gadgets and they are all on laptops, mobile phones and they are sitting at their home only. तो आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्मॉल सी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग द डेज कि हम अपने हार्ट को फिट भी रखें आगे तक और मतलब हेल्दी भी रहें और हमारी स्टडीज भी कंटिन्यू होती रहे और लाइक वी कैन गो अलोंग द टाइम. ओके, So first thing is that, see, the day will always be 24 hours. It will not be 25 hours for somebody. So it will be 24 hours, and
it is 24 hours is a very long time. You take out time for everything. You go to marriages, you go to functions. Of course, I always say Facebook and Instagram is such a big thing that सबका social media time is maybe 1 hour, 2 hours, कभी कभी 3 घंटे भी होता है. It's same with adults also. So taking out time every hour is important. आप अलार्म लगा ले फोन में, आजकल लोग वॉचेस पहनते हैं, उनमें ऐप्स होती हैं. You can just get a walk for 2 minutes. Don't use a remote much and take the stairs more. कहीं पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ लिफ्ट्स होती हैं, ट्राई टू टेक द स्टेयर्स मोर. मैंने कल भी डेस्क जॉब वालों के लिए एक वीडियो डाला था, जिसमें 8 hours of working in the office, you can do 2 minutes of exercise every hour. You can do 1 minute of walking and 1 minute of some kind of strength exercise. It's very simple to take out time. But the problem is that this thing is taking away all the time. So पहले मैं जब maybe लिफ्ट के सामने खड़ा होता था, I will close my eyes, maybe just relax. अब क्या होता है कि whenever you get time, even between patients, एक patient है, दूसरे patient गया, take up my, I'll try to check for messages. So it is with everybody. So this is taking away all the free time that you have. And आज भी एक बार में एक रिपोर्ट थी कि if you can reduce your time, social media time, the incidence of depression, I hate this D word, I never use this D word, but the incidence of depression can come down by 25% just by reducing your social media time, which is such a big number. So social media time is taking away all the free time that we have for our mind and body. So this is the biggest culprit, I think, that we are facing already. So still we have time. So you just need to change your habits and try to come a little bit off social media. Okay, so I have also started doing exercise nowadays because I also feel that it is really, you get tense free. If you come from school and you do exercise, it is really stress free. Your tiredness also go away. See, it is like whatever happens in the day. आप क्लास में काम करना भूल गए, आपको टीचर ने डांट दिया, घर जाके पेरेंट्स ने डांट दिया, whatever happens, that half an hour or 45 minutes of exercise will give you such a mood elevation, and that will stay with you. That positivity will stay with you throughout the day. Okay. That's very important. थैंक यू सर. सर, जैसा कि हम जानते हैं कि पीपल जो हैं वो आजकल मोस्टली जो हैं वो ये फास्ट फूड से खाने, मतलब फास्ट फूड ही मोस्टली यूज खाना खाते हैं, मतलब फास्ट फूड के से ही लेके. तो हम अपनी डाइट में अपनी से कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो होता है वी शुड डू इट लाइक अ किंग. Yeah. बट मोस्टली पीपल डोंट ईट ब्रेकफास्ट ओनली. They skip breakfast and they only go to lunch and dinner, and they eat dinner like they are no king, like, so we should eat dinner like a poor person, but they eat dinner like a king. So what is your impression? It is 100% true, because see, breakfast is like preparing for the day. Hmm. आप जब सुबह जाते हैं ना, मोबाइल को चार्ज करके निकलते हैं, वैसे बॉडी को चार्ज करना है. इट इज नॉट ओनली ब्रेकफास्ट, व्हाट यू आर हैविंग इन ब्रेकफास्ट, यू शुड हैव अ हाई प्रोटीन डाइट इन ब्रेकफास्ट. नॉर्मली हमारी आदत क्या है, वी ईट लॉट्स ऑफ ब्रेड्स, लॉट्स ऑफ शुगर्स इन ब्रेकफास्ट. सो यू शुड हैव अ हाई प्रोटीन डाइट इन ब्रेकफास्ट and a light dinner, which is of course complex carbohydrates, to prepare for the sleep. Okay, रात में if you eat a heavy dinner, there is circulating sugar in your body which is there throughout the night, and it will get deposited as fats and triglycerides. If you take a heavy breakfast, then the whole day you will be burning those calories off and nothing will be deposited in the body. Whenever there is extra calories circulating in the body will tend to deposit it as fat, because you eat sugar, insulin increases and it will get deposited as fat. So definitely breakfast has to be heavy, plus it has to be a good protein breakfast. Okay, सर आजकल मीडिया में ये बहुत बात चल रही है कि पीपल आर इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? Insulin resistance is like, first is your body is not producing enough insulin, and secondly your receptors that you have in your muscle that are not functioning enough to let the insulin act on the body. And especially with aging, like in our age group, what happens is that people tend to lose muscle, and the only site of action of insulin in the body is muscle. There is a GLUT4 receptor in the muscle, which is the only site of action of insulin. So as you age, you lose muscle, you lose those receptors, and the insulin does not work anymore, and you get hyperglycemia. So you should tend to eat less sugar, walk more to burn the calorie, and then you need to preserve your muscle so that whatever existing insulin you have will act more. So everything acts around reducing the amount of sugar going around in the body. Thank you, sir. So now let's move on to the second segment of our podcast, that is the question and round, where students will ask questions and know the solutions of some of their concerns. सर, कि जैसे कि हमें बहुत बार कहा जाता है, और पेरेंट्स से भी कई बार कहा है कि एक बार 12th कर ले, उसके बाद कॉलेज में मजे ही मिले. तो इज दैट एक्चुअली ट्रू इन द मेडिकल फील्ड? Yeah. So
हमेशा कहा जाता है कि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए मजे हैं, 12th में हो गया तो मजे हैं, फिर कॉलेज में पीजी में हो गया तो मजे हैं। लेकिन क्या होता है कि पहले आपकी पढ़ाई है, फिर आपका करियर है, फिर बच्चों की पढ़ाई है, फिर बच्चों का करियर है। ये टेंशन लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होती। यू ओनली नीड टू चेंज योर एटीट्यूड कि जब आप जो भी कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू कंप्लीट, बट यू हैव टू बी हैप्पी व्हाइल डूइंग दैट। ट्राई टू अचीव योर थ्रेशोल्ड्स, ट्राई टू अचीव योर गोल्स विद हैप्पीनेस। पढ़ाई तो करनी है लेकिन दुखी होकर नहीं करनी है। स्ट्रेस तो कभी खत्म नहीं होता, बिकॉज इट इज योर पढ़ाई, देन योर कैरियर, देन बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का कैरियर, बच्चों की शादी, इट इज नेवर गो। सो यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड एंड प्लस यू हैव टू डिफाइन योर प्रायोरिटीज, स्पेशली एज यू एज, लाइक तार एज कि आपको कितना काम करना है, कितने आवर्स काम करना है। आज भी एक अखबार में कंसेप्ट था कि यूएस एंड जापान में दे आर रीपुशिंग द 996 कंसेप्ट। यू नो व्हाट इज द 996 कंसेप्ट? वर्किंग 9 to 9 6 days a week, so which is like 12 hours 6 days 72 hours. And what is the healthy working hours recommended? 40 hours. It is recommended to be happy you should be working 40 hours a day. लेकिन कंपटीशन में लोगों से अभी भी आज भी यूएस जापान जो बहुत जानते हैं कि भाई क्या बेहतर है, उसमें भी दे आर पुशिंग 996 रूल। सो देन द पर्सन हिमसेल्फ हैज टू डिफाइन हिज प्रायोरिटीज कि आपको लाइफ में क्या बेहतर चाहिए। आज मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ, मैं अपना जाके काम भी कर सकता हूँ। सो यू हैव टू जस्ट डिफाइन कि व्हाट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपकी फैमिली, जगलर होता है ना, बॉल एंड जगलिंग करता रहता है। जब बहुत सारी बॉल जगल करते हैं तो 2-4 तो गिर जाती हैं। जो गिरती हैं हमेशा दे आर योर फेवरेट बॉल्स। आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस जो है वो सबसे पहले जाता है। तो ट्राई टू पिक अप ओनली द अमाउंट ऑफ बॉल्स व्हिच यू कैन जगल। थैंक्स सर। आपका स्लीप साइकिल को लेके क्या कहना है? अभी कहते हैं ना कि अभी बहुत ज़्यादा पढ़ लो, मतलब रात को लेट लेट तक बच्चे जग के पढ़ते हैं, और स्लीप अगर अपन कट ऑफ कर दे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है अपनी हेल्थ पे। तो स्लीप को लेकर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी निगलेक्टेड क्वेश्चन। एंड लैक ऑफ स्लीप की जो हेल्थ पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड है। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम मोबाइल को भी अगर रात भर चार्ज नहीं करेंगे तो अगले दिन काम नहीं करेंगे। सेम इज विद द बॉडी। फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग स्लीप इज एज इंपॉर्टेंट जितनी इंपॉर्टेंट डाइट और एक्सरसाइज है। सेकेंडली, टेक्निकली देखें तो इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग तो पूरे दिन नेक्स्ट डे यू आर स्लगिश, आपका बीएमआर कम रहता है। तो इवन इफ यू एक्सरसाइज एंड यू हैव नॉट स्लेप्ट, आपका बीएमआर कम रहेगा एंड यू विल बर्न द लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज फॉर द सेम एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग आफ्टर अ गुड स्लीप। एंड थर्डली, कई सारे लोग जो पूछते हैं ना कि वो तो इतना फिट आदमी था, वो इतना भागता था, सडनली कोलैप्स क्यों हो गया? बिकॉज पीपल टेंड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्लीप फॉर एक्सरसाइज। रात को 12-1 बजे पार्टी से आए हैं और सुबह 5 बजे उठ के रनिंग पे चले गए, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। यू डोंट गेट इनफ हाइड्रेशन, यू डोंट गेट इनफ rest, and suddenly you're trying to do too many things with the body which the body is not supposed to do. So that is the cause of many health problems and otherwise fit people, that they tend to compromise on sleep to try to maintain their fitness because they don't know the rule that the sleep is also an essential part of the fitness as much as diet and exercise. अगर इन केस ऑफ बाइट सर्जरी हम हमेशा लेग्स ही आर्टरीज क्यों यूज करते हैं? Why we not take from any other part of our body? So bypass surgery, first is that the ideal bypass surgery would be जिसमें हम केवल आर्टरीज यूज करते हैं। तो 2 बड़ी आर्टरी होती हैं यहाँ पे, एक लीमा होती है, एक रीमा होती है। तो हर सर्जन की पहली चॉइस होती है कि वो लीमा यूज करें। लीमा इज मोस्टली, इफ यू सी 90% ऑफ हार्ट सर्जरीज में लीमा जो चेस्ट की आर्टरी होती है उसको वहां से हटा के हार्ट पे लगा देते हैं, बिकॉज वी नो कि आर्टेरियल ग्राफ्ट्स सर्वाइव मोर। सेकंड ग्राफ्ट दैट वी टेक इज रेडियल आर्टरी। हाथ की आर्टरी होती है रेडियल आर्टरी, उसको यहाँ से निकाल के उसको भी हार्ट पे लगा देते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ सेकंड नंबर ऑफ ग्राफ्ट आफ्टर लीमा। एंड देन वी टेक वेन्स। सी वी कैन नॉट टेक ऑल द आर्टरीज बिकॉज उन आर्टरीज का भी अपना अपना काम है। यहाँ से रेडियल इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें अल्नर आर्टरी साथ में पैरेलल चलती है। लीमा इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि कोलैटरल आर्टरी से चेस्ट को ब्लड सप्लाई हो जाती है। वेन्स पैर किस लेते हैं? क्योंकि दे हैव टू मैच द साइज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज का साइज है उसको सप्लाई करने के लिए हमें बड़ी वेन चाहिए, और वो बड़ी वेन हमें लेग्स में ही मिलती है, इसलिए वहाँ की वेन को लेते हैं। Now is a time that I extend my sincere gratitude to our esteemed audience for their engagement, encouragement, and unwavering support. And before we conclude, let us share a little about our platform. It is a space where students explore and learn various skills such as management, communication, production, editing, and content writing. Everything you see here, from planning to presentation, is entirely done by our students, which perfectly reflects our motto,
of the students, by the students, for the students. And I wish to appreciate a big thanks to you, sir, for gracing this occasion and contributing with such insightful, thoughtful, and inspiring perspectives. Your presence has added an immense value to this event, and we are truly honored to have you with us here. My pleasure. Thank you. Now, at last but not least, for our audience. Feed your body right, your body will fight for you. Choose health today, thank yourself tomorrow. And for further updates, kindly follow us on Instagram at Beyond the Books and subscribe our YouTube channel. We look forward to bring more enlightening conversations and forthcoming episodes for Beyond the Books. Thank you.